بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول یہ چاہتے یہ شدتیں، جلد دوم کی قسط نمبر 17 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات تک کیسرا آپا کا رویہ طاہرہ کے ساتھ کافی روکھا سا ہو گیا تھا۔ انہوں نے چند بار آپا سے بات کرنے کی کوشش کرنا بھی چاہی تو انہوں نے خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ وہ چاہنے کے باوجود انہیں مخاطب نہ کر پائیں۔ رات خود ہی کچن کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے کو ان کے پاس چلی آئی تو انہوں نے وہی سوال کر ڈالا جس کی وجہ سے وہ سوچ کر پریشان ہو چکی تھی۔ اگر تمہارے بچوں نے اسی طرح چپ سادے رکھی تو تمہارے میاں نے آخر فیصلہ کر ڈالا، کدھر جاؤ گی تم؟ بڑی شفاقی سے سوال کیا تھا۔ طاہرہ نے بڑی خوفزدہ نظروں سے آپا کو دیکھا تھا۔ بڑا سپاٹ سا چہرہ تھا۔ میں بھلا کدھر جاؤں گی؟ آپ کے پاس ہی رہوں گی، ساری عمر آپ کے پاس ہی آئی ہوں۔ سب بہن بھائی اسی بات پر ناراض رہتے تھے کہ آپ کو میں اہمیت دیتی ہوں، انہوں نے سادگی سے کہا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب بھلا تم میرے پاس کیوں رہو گی؟ بڑے بھائی صاحب ہیں اور بھی بہن بھائی ہیں، کسی کے بھی پاس چلی جاؤ۔ انہوں نے ایسی بات کہی کہ طاہرہ بیگم ششدر سی رہ گئی تھی۔ کیسرا آپا نے ان کے اس انداز پر اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ طاہرہ بیگم ساری عمر گنوا کر بھی ان کا رویہ اور بدلے تیور نہ سمجھ پائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، ہر کسی نے الزام مجھے ہی دیا ہے۔ اب بھلا وہ لوگ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ساری عمر اس بہن کے ہی دماغ سے سوچا اور کیا، اب بھلا کیسے کسی اور کے پاس جانے کا سوچتی؟ تمہیں اپنے بہنوئی کا تو پتہ ہے کس دماغ کے انسان ہیں، اگر انہوں نے کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو پھر مجھے نہ کہنا۔ وہ صاف لفظوں میں طاہرہ کو اپنے گھر سے چلے جانے کا کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس حالت میں بھی چاہتی تھی کہ طاہرہ خود ہی کچھ سوچ لے اور ان کے اوپر الزام بھی نہ آئے۔ اگلے 2 دن میں طاہرہ بیگم نے صاف محسوس کیا، آپا تو ایک طرف، ان کے میاں اور تینوں بیٹیوں کا رویہ تک بدل گیا تھا۔ 2 دن سے انہوں نے صرف ایک بار صبح کے وقت کھانا کھایا تھا، کسی نے ان سے کھانے کا پوچھا تھا اور نہ ہی کھانے پر بلایا تھا۔ صرف ایک اسجد تھا جس کا رویہ ابھی تک نارمل تھا، پہلے جیسا ہی تھا۔ تیسرے دن بھوک، ٹینشن اور کمزوری کی وجہ سے انہیں بخار ہو گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو کر آپا کے یہاں آئی تھی تو ان کی اولاد تو ایک طرف، کسی بہن بھائی نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ لعنت ملامت ہی سہی، کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ خالہ جان، اسجد کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھولنا چاہی تھی مگر پانی کی وجہ سے سارا عکس دھندلا گیا۔ ارے خالہ جان کیا ہوا، لیٹی کیوں ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ طاہرہ کا ہاتھ تھاما تو چونکا۔ ارے خالہ آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ پانی پلکوں کی سرحد پار کرتے رخساروں پر بہنے نکلا تو اسجد نے بڑی خاموشی سے انہیں دیکھا تھا۔ اس وقت خالہ پر غصہ بھی آیا اور ترس بھی۔ یہ بے یار و مددگار عورت ساری عمر اس کی ماں اور باپ کے ہاتھوں کٹ پتلی بنی رہی تھی۔ یہ معصوم سی عورت اپنی کم عقلی کے ہاتھوں ساری عمر بہن کے اشاروں پر عمل کرتی رہی تھی۔ آج سب کچھ گنوا کر بے یار و مددگار بیٹھی حقیقی اور اعتبار کے رشتوں سے گندے چہرے سے اتنے نقاب اٹھے خالہ اب رونے کا بھلا کیا فائدہ؟ ساری عمر گنوا کر اس عمر میں عقل بھی آ جائے تو اس عقل کا بھلا کیا فائدہ؟ میں نے جب بھی آپ کو سمجھانا چاہا، امی اور ابو کی اصلیت بتانا چاہی، آپ نے ہر بار مجھے ٹوک دیا۔ اگر تب میری بات سن لیتی یا کسی اور کے کہے پر عمل کر لیتی تو آج اس حال میں نہ ہوتی۔ آپ کی ذرا سی تکلیف پر آپ کے ارد گرد آپ کی ساری اولاد ہوتی۔ خالہ جان، خالہ کی حالت نے اسے اتنا غصہ دلایا کہ وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا تھا۔ میں سب دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں مگر بے بس ہوں۔ صرف آخری بار آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ خدارا ابھی بھی وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کی اولاد اور احمد فیملی کے دل بڑے وسیع ہیں، وہ گزری بات کا حوالہ کبھی نہیں دیں گے۔ ایک دفعہ آپ کو ہمت کرنا ہوگی۔ ہماری امی اور ہمارے ابو آپ کے ساتھ کبھی مخلص نہیں رہے، انہوں نے اپنے مطلب کے لیے آپ کو صرف استعمال کیا ہے، صرف استعمال۔ آپ کی حیثیت اس وقت کھوٹے سکے سے بھی کم ہے۔ آپ اب صرف خالی برتن ہیں جو ان کے کسی کام کے نہیں، اسی لیے انہوں نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو اپنے گھر سے نکال دیں آپ خود ہی کوئی فیصلہ کر لیں۔ اسجد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپا پر تو مجھے اپنی ذات سے بڑھ کر اعتبار تھا۔ اسجد کے اس قدر ترش اور تلخ انداز و الفاظ پر انہوں نے اسے ٹوک دیا تھا۔ حیرت ہے آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ آپ اتنی کم عقل کیوں ہیں خالہ جان؟ ماں اور باپ ان لوگوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں جو رشتوں کو صرف ہوس، خود غرضی اور دولت کے ترازو میں تولتے ہیں اور محبت کو صرف اعتراض کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ ہماری امی کے اندر یہ خصوصیات کیسے پیدا ہوئی مجھے نہیں علم
मगर वक्त और हालात ने इदराक जरूर कर दिया है कि इन्हें अपनी ज़ात और सलाहियतों पर हद से ज़्यादा गुमान है। इन्हें सलाहियतों के बलबूते पर इन्होंने आपके शोहर हजरात खालू साहब को अपनी तरफ मबजूल करना चाहा था। है तो शर्म की बात, मगर क्या करें, आपको हकीकत की तल्ख दुनिया दिखाने के लिए ये सब बताना भी ज़रूरी है। मगर वो अक्लमंद थे जो इनके जाल में ना आए। इनका प्लस पॉइंट ये था कि दौलतमंद थे, और दौलत अम्मी की कमज़ोरी है। वो इनसे सिर्फ बदजन ही ना हुए थे, खार भी खाने लगे थे, और ये बात अम्मी के लिए नाकाबिले कबूल थी। कोई इनके जाल से बच निकले, ये कैसे मुमकिन था। इन्होंने इनसे दुश्मनी का रिश्ता बना लिया था, सिर्फ इनसे ही नहीं, शाइस्ता खाला लोगों से भी। मगर अफसोस, खालू का इंतखाब आप ठहरी और अम्मी का इंतकाम। अज़ियत बस करो बस। इन्होंने इसे रोकना चाहा तो, मगर वो तमस्खुर से हंसते एक पल रुका और फिर शुरू हो गया। इन्होंने सोचे समझे मंसूबे के तहत आपको सऊद अंकल की तरफ राग़िब किया। अज़ियत बस करो। अज़ियत के मुंह से ये सब सुन सुनकर इनका सिर्फ सर ही नहीं झुका था, वो खुद भी अपनी नज़रों से गिरने लगी थी। खाला, मुझे आज बोलने दें। ये बरसों का गुबार है जो मेरे अंदर इकट्ठा हो चुका है। अगर आज भी ना निकला तो मैं पागल हो जाऊंगा। आपकी तरह मैं भी अम्मी की सलाहियतों के ज़ेरे असर रहा था, और फिर जब हकीकत का पर्दा एक एक करके मुझे असल चेहरों से रोशनास करवाता गया तो मेरे अंदर से रिश्तों का राह सा भरम भी उठ गया था। मैंने बारहा कोशिश की कि आपको आने वाली तकलीफ से बचा लूं, मगर अफसोस मैं ऐसा ना कर पाया। वो बड़े दुख से रुका था। अम्मी से बर्दाश्त ही नहीं होता था कि एक डब्बू सी बेवकूफ़ और अपनी दुनिया में मगन रहने वाली इनकी बहन इनसे सबकत ले जाए। इन्होंने आपको सऊद अंकल की तरफ और राग़िब किया, और फिर शाइस्ता आंटी के दिल में ये बात भी डाल दी। आपके जज्बात को वो हवा देती रही और इधर शाइस्ता आंटी को जलाती रही। आपकी किस्मत थी कि अम्मी की हज़ारों कोशिशों और आपके जज्बाती हरकतों के बावजूद सईद अंकल से आपकी शादी हो गई। आपने हालात को कबूल नहीं किया था, मगर मजबूरी निभा रही थी, है ना। तुम्हें ये सब किसने बताया? अज़ियत का सवालिया अंदाज पर इन्होंने गुस्से से पूछा था। वो हंस दिया। हालात ने खाला जान, वक्त तो हालात ने सब बता दिया कि क्या सच है और क्या झूठ। दौलत और खूब तर की जुस्तजू का लालच सिर्फ अम्मी की फितरत का हिस्सा ना था, बदकिस्मती से ये हमारे अब्बू के खून में विरासत के तौर पर शामिल था। अम्मी के ससुराल यानी हमारा ददियाल सईद अंकल जैसी ठाट बाट को के मुकाबले में कुछ भी ना था, और अम्मी अब्बू को हर वक्त इस बात का एहसास दिलाती रहती, और अब्बू की लालची फितरत एहसास कमतरी का शिकार होकर इन्हें दौलत समेटने के इसरार और अमूद से आगाह करती रही। इन दोनों ने मिलकर आपके जहन को सारी उम्र जकड़े रखा। इन्होंने आपको खुद से कभी सोचने ना दिया, मिट्टी का मादू बनाकर रख दिया आपको। आप अंकल को शादी के बाद कबूल कर लेती, मगर इन्होंने ऐसा ना होने दिया। हर वक्त कोई ना कोई बात ऐसी छेड़े रखती कि आपकी शाइस्ता आंटी से नफरत इंतहाई हद को पहुंच गई। आप ये सच था, और ये सच था। तायरा को अब भी याद था सईद अहमद इनके साथ किस कदर सच्चे थे। इनके खलूस पर वो खुद से शर्मिंदा हो जाती थी, और आप हर बात इनकी शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए शाइस्ता को दरमियान में लाकर नफरत की वजह बना देती थी। खाला, वक्त ने अम्मी की सोच को शिकस्त दी थी, अंकल की मोहब्बत जीती थी। आपके दिल में गुज़श्ता जज्बात और नदामत के साथ नए एहसास पैदा होने लगे थे, और अम्मी की हज़ारा कोशिशों के बावजूद आप सईद अंकल से एक मुखलिस बीवी का सबूत देने लगी थी। और अम्मी को यह गवारा नहीं था कि आप एक खुशबाश ठाट बाट वाली ज़िंदगी गुजारें, और वो आपके हर माह दिए गए हज़ारों रुपए पर ज़िंदगी गुजार दें। ताहिरा ने हैरान होकर अज़ियत को देखा। वाकई हर माँ बहुत चुपके से सईद अहमद के हाथ में जो भी रखते थे आधे से ज़्यादा आपा को दे देती थी। माँ भाई साहब शुरू से ही फारिगुल बाल थे, सारी उम्र ना कोई काम किया था ना कोशिश की थी। बाप दादा की जायदाद से इनके हिस्से में एक घर और कुछ दुकानें आई थी, जिनका किराया इनकी आमदनी कुल आमदनी थी। ऐसे में वो हर माँ आपा के साथ कुछ ना कुछ रख दिया करती थी, और आपा हर बार हक समझकर ले लेती थी। बाज़ औक़ात तो वो खुद से कई हज़ार मांग लेती, और इन्होंने कभी इनकार ना किया था। और सईद अहमद अच्छी फितरत के थे, कभी देख कर पूछा ना था वो रुपया कहाँ खर्च कर रही हैं। आपकी शाइस्ता आंटी से मुताल्लिक नफरत ख़त्म हो रही थी। इसका मतलब था कि कुछ अरसे बाद हालात नॉर्मल हो जाते, और अगर ऐसा हो जाता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। अम्मी ने हमेशा आपको अपने तसल्लुत में रखने के लिए बहकाना शुरू कर दिया। आपको दो बेटों की माँ होने के एजाज़ में इस गुरूर फ़ख्र में मुब्तला कर दिया जो फ़िरौन के दिमाग में समाया तो वो फना हो गया था, और आप इनकी हर बात पर अमल करती रही। इन्होंने अंकल के दिल में आपके खिलाफ शक पैदा करवा दिया। इन सब हालात के साथ आपको अपना मकसद था। क्यों हर बात अम्मी और अम्मी की मानी जाए? अपनी अकल इस्तेमाल क्यों ना की? क्यों हमारी ज़िंदगियों को हमारे लिए तोप बनाती रहीं? ये बेबस बेज़मीर लोग थे। कुछ हमारा ख्याल कर लिया होता। अम्मी ने कभी ना सोचा कि वो जो घड़ा किसी के लिए खोद रही हैं, कभी इनकी अपनी औलाद भी इसमें गिर जाएगी। खाला, कुछ तो सोच लिया होता। अज़ियत के इस किस्म के रवैये पर वो शद्दत सी बैठी रह गई थी। आपने अपना घर बर्बाद किया और अम्मी के पास आ गई। कसूर शाइस्ता आंटी का ना था, कसूर आपका था।
चंद साल बाद अंकल से अगर आपकी सुलह हो गई थी तो आपने वही रूटीन रखी। अगर ईमानदारी से अपना घर बसा लेती तो अम्मी की क्या मजाल थी आपको बहकाती। आपने इस दौर में सबसे बड़ी गलती ये की कि उस्मान और हादिया के मामले में अम्मी की बातों पर अमल किया और अंकल के दिल में आपके लिए जो थोड़ा बहुत एहसास बाकी था वो भी खत्म कर दिया आपने खुद अपने हाथों से। फिर शाइस्ता आंटी या इनकी बेटियों को इल्जाम क्यों? वो सरापा सवाल बना हुआ था और ताहिरा लाजवाब होकर सर झुका गई थी। इनके सर झुका लेने से अज़त को बड़ी तकलीफ हुई थी। आपने अपने बच्चों को खुद से मुतनफ़िर किया, पहले उस्मान और फिर समान और इसके बाद अली और फरा। आपने एक एक करके अपनी औलाद को खुद अपने से दूर किया। आपको पता है फौजिया आपा ने खुफिया शादी कर रखी है। क्या? इन्हें लगा जैसे इनके इर्द गिर्द बम ही तो फटा गया। जी हाँ, इंसान जो बोता है वही काटता है। जिस पैसे से इंसान की तरबियत होती है इसी रुपये की कीमत इंसान के किरदार को वाजिया करती है। फौजिया ने शादी कर रखी है, राबिया वो फिल्मी दुनिया के ख्वाब देख रही है। अम्मी के लिए ये दोनों बातें आम सी हकीकत रखती हैं और अब्बू इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे वो फौजिया के शोहर को हर माह बीवी से मिलने के लिए एक माकूल रकम की सूरत में इनके हाथ पर रखना पड़े। पैसा कहाँ से आता है? इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं, बस पैसा होना चाहिए। अम्मी को सब पता था कि फौजिया क्या करती है, किससे मिलती है, मगर इन्होंने आपको अपने तसल्लुत में रखने के लिए आपको सामान और फौजिया के मामले में उलझाए रखा और जब दिल चाहा लाखों मांग लिए और कभी वापस ना किए। ऐसी ही खेल वो मेरे और फरा के मामले में भी खेलना चाहती थी, मगर किस्मत से बढ़कर कोई भी जोर आवर नहीं। इनको फरा से ज़्यादा फरा के नाम के शेयर्स और दौलत जायदाद अट्रैक्ट करती थी। खाला, क्या आपने खुद से कभी ना सोचा ये जो इतने सारे लोग एक तरफ हैं और अम्मी एक तरफ, इसमें सच क्या है? क्या आपको कभी दिल ना चाहा कि एक बार ही सही इन सारे लोगों की बात ही मानकर देख लें? सिर्फ एक अम्मी ही तो थी, अपने घर बर्बाद करी थी, औलाद आपसे और मुतनफ़िर बहन भाई अब आपको आपके हालात छोड़ चुके हैं। तो इस आलम में भी आपने घर छोड़कर चले आने की एक इंतहाई संगीन गलती की है। क्यों खाला, क्यों? वो इतना बोला था कि आखिर में एकदम खाला के हाथ थाम कर सवालिया निशान बन गया था। आपा गलत नहीं हो सकती, मेरा दिल नहीं मानता, वो कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। ये पता नहीं यकीन और एतबार की कौन सी मंजिल थी। अज़त को लगा इसका सब कहना फजूल था। आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, चलिए मेरे साथ। वो इन्हें उठाकर सहारा देकर बाहर ले आया था। कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी सब हकीकत की तरफ वाज़ा हो जाएगा, बस आप इधर रुकें। इस खिड़की से अंदर की सारी आवाज़ आएगी, आपने ध्यान से सब सुनना है। मैं अंदर जा रहा हूँ, ये आखिरी मौका है खाला संभलने का। मुझे कैसे इल्म हुआ ये वक्त ने सिखाया है, अब वक्त आपको सिखाने वाला है। हौसला रखिएगा, अभी वक्त आपके हाथ में है, मगर याद रखिएगा वक्त निकल गया तो पछतावा भी बेकार रहेगा। वो इन्हें खिड़की के पास खड़ा करके अंदर चला गया। अम्मी, आपको पता है खाला को कितना तेज बुखार है? ये अज़त था, तो मैं क्या करूं, मुसीबत जान को ही आ गई है अब तो। ये बेजारियत लिए आवाज़ कैसरा आपा की थी। ताहिरा को लगा जैसे छन से इनके अंदर कुछ टूट गया है। तुम्हें ही बड़ा शौक हो रहा है खैर सगाली का, मैं तो पहले दिन ही कह दिया था इसे मत रखो, अभी फारिग करो, मगर तुमने ही मेरी एक ना मानी। बहनों की आवाज़ पर छन से इनके अंदर फिर कुछ टूट गया था। ये एतबार, बरसों का यकीन जो आज रेजा रेजा हुआ था। हाँ तो मैं भी क्या करती, आपके सामने ही सब कुछ था। मुंह से वो एक लफ्ज़ नहीं निकाल रही थी। फिर मुझे ये भी था कि नाराज़ होकर ही आई है, तो क्या पता सब कुछ खत्म करके आई है। ताहिरा को आपा की आवाज़ बड़ी अजनबी लगी। मुझे तो ये था कि अभी भी लाखों करोड़ों की मालिक है, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, मगर क्या पता था कि बिल्कुल खाली हाथ आई है। ब्रीफकेस चेक किया तो सिवाय चंद जोड़ों के जेवर नाम की एक चीज़ भी नहीं जो पहनी थी वो भी उतार कर आई। अहमक, सारी उम्र की वो अहमक और बेवकूफ़ रही है तब्बूसी, अपनी तो अक्ल इसमें है नहीं, नाम की भी पागल है। मैं आपसे क्या बात करने आया हूँ और आप क्या मसला लेकर बैठ गए हैं? सारी उम्र खाला ने आप लोगों को खिलाया है, ये अमारत, ये ठाट बाट सब इन्हीं की वजह से तो है, वरना अब्बू दुकानें किराया से हम गुजारा कैसे कर लेते? अज़त ने तलखी से कहा था। तुम्हें बड़ी इसकी साइड आ रही है, चंद हज़ार क्या कमाने लगे हो, खुद को बड़े अफलातून समझने लगे हो। चुप करके बैठो और कैसरा साफ सुन लो, अब अपनी बहन को चलता करो, कहीं भी रहे हमारी भला से। सारी उम्र का हमने ठेका नहीं ले रखा, बेटा कहीं और ब्याह दिया, बेटी कहीं और दे दी, हमारे हाथ क्या आया? वही खैरात के हर माह चंद नोट। निकालो इस नहुसत को अब घर से, मुझसे नहीं ये मुफ्तखोरी करवाई जाती। कैसी सफाक आवाज़ थी। ताहिरा बेगम को अपना सर घूमता महसूस हुआ। कर तो रही हूँ भाई साहब को बार बार फ़ोन कि आकर अपनी चहेती को ले जाएं, बड़े दर्द उठते रहते हैं ना हर वक्त सबके पेट में, अब वो सब ख़त्म कर रही है तो कोई खैर खबर लेने नहीं आ रहा, वरना सारा ख़ानदान आगे पीछे नसीहत और मलामत करने पहुंच जाता था। ये वो अल्फाज थे जो ताहिरा बेगम ने सुने थे और फिर इनको लगा इनके हवास इनका साथ छोड़ रहे हैं। पहले अज़त की बातें और अब ये इंकशाफ, वो लहरा कर गिर सी गई थी और फिर हर चीज़ इनकी बसारत से ओझल हो गई थी।
होश में आने के बाद इन्हें अव्वल तो कुछ समझ ना आया, और जब इन्हें जगह और सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो इनका दिल फिर रोने लगा। खाला जान, अजद को खुद पर झुके देखकर वो रो दी थी। अजद, क्यों किया आपा ने मेरे साथ ऐसा? मैंने कभी इनका बुरा नहीं चाहा था। इनके आंसू बेइख्तियार बहने लगे थे। खाला जान प्लीज खुद को संभालें, आपकी तबीयत नॉर्मल नहीं है, आप मुसलसल 2-3 घंटे से बेहोश हैं, इस वक्त भी अस्पताल में हैं। अजद, मेरे बच्चों को बुलवा दो, सारी उम्र मैंने इन्हें कोई सुख नहीं दिया, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं एक बार तो इनसे माफी मांग लूं। और सईद अहमद के तस्वुर से ही इनका पूरा वजूद कांप रहा था। खाला जान प्लीज, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर चुका है, बमुश्किल होश आया है आपको, प्लीज कुछ ना सोचें, मैं सबको इतला करूंगा, आप पहले खुद ठीक तो हो लें। नहीं अजद, सब कुछ बाकी नहीं है, सईद अहमद को बुलवा दो, मेरे बच्चों को बुलवा दो, फिर चाहे मौत आ जाए, अब जीने की चाह नहीं, अब किस मुंह से जिंदा रहूंगी, तुम दुआ करो रब मुझे मौत दे दे। खाला जान, ताहिरा बेगम की आवाजारी पर अजद के लिए इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। इसने डॉक्टर्स को बुलाया और इन्होंने ताहिरा बेगम को इंजेक्शन लगाकर पुरसुकून नींद सुला दिया। इन्हें बेसुध बिस्तर पर लेटा देख अजद के अंदर का इस्तराब बढ़ने लगा। इनकी इस हालत की सबसे बड़ी जिम्मेदार इसके अपने वालिदैन थे। इन्होंने इनके बेहोश हो जाने पर बजाय वहां वजह जानने के या शर्मिंदगी जाहिर करने के तिल मिलाकर कहा, लो जी ये और ड्रामे शुरू हो गए हैं, सारी उम्र ड्रामे करते ही गुजर गई, अब क्यों पीछे रहती वाला। ये इसकी माँ के अल्फाज थे और वो खामोशी से इन्हें अस्पताल ले आया था। और अब इनके बच्चों में से किसी ने भी माँ से रब्ता नहीं किया था, हालांकि कि एक फ़ोन तक नहीं किया था। क्या वाकई इन लोगों के दिलों में खाला के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं? खाला के जर चेहरे को देखते अजद के अंदर बड़े तकलीफ दा लहर उठी थी। अपने माँ बाप की गुनाहों का कफारा हमें ही अदा करना है, जैसे भी मुझे अब अंकल और बाकी लोगों से रब्ता करना होगा। बहुत सोच विचार के बाद अजद ने सईद अहमद के घर फ़ोन करके खाला की तबीयत से मुतल्लिक आगाह करने का फैसला किया था। नवेरा की इस तरह गुमशुदगी जिसने भी सुना इसको हिला कर रख दिया। शारिक और नबील अपनी अपनी हर जगह मुमकिन कोशिश कर रहे थे, किसी तरह पता लगा लिया जाए कि नवेरा कहाँ है, और नवेरा ने तो कोई निशान भी बाकी नहीं छोड़ा था। इंस्पेक्टर अंजुम की तमाम कोशिशें नाकाम थी। 2 दिन गुजरे तो बाद इन दोनों घरों से निकलकर खानदान के बाकी घरों में भी पहुंच गई। नवाज फारूक ने सुना तो कई पल अपनी जगह से हिलने की सकत ना रही। नवेरा को ऐसा इंतहाई कदम भी उठा सकती है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और वजह क्या थी? चंद लोगों के अलावा बाकी सब बेखबर ही थे। ये क्या कर दिया तुमने पागल लड़की? नवाज को लगा ज़हन दिल नवेरा की इस दर्जा जज्बाती हरकत को कबूल करने से कतई कासिर है। न जाने वो किस हाल में और किन लोगों में है। अगला तस्वुर इससे भी ज्यादा जानलेवा था। जब यही खबर हमीद साहब के यहाँ पहुंची तो वहाँ मौजूद हर फर्द को लगा जैसे कयामत आ गई। रजा ने तो कभी ऐसा गुमान भी नहीं किया था नवेरा कोई ऐसा कदम भी उठा सकती है। वो तो ढह गया था। जुबैदा चची और हमीद चचा दोनों घरों में गए थे और वापस आकर हमीद साहब का जी चाह रहा था कि रजा की गर्दन उड़ा दें। रिफत बाजी, वाजिदा बेगम और फिर नबील के हाथ से नबीला और खालदा बेगम की जबान से जो कुछ सुनने को मिला था नवेरा और शारिक के ताल्लुकात और नबील की जिद समेत मौजूदा इंकशाफात हुए थे। इन्होंने जुबैदा बेगम की कुव्वत गुयाई को और सलब कर दिया था। हमीद साहब के अंदर आतिश फशा भड़का हुआ था। घर आते ही वो सीधा रजा के कमरे में पहुंचे तो जो इस खबर के बाद मुसलसल कमरा नशीन हो बैठा। हो गई तसल्ली तुम्हारी? मिल गया सुकून तुम्हें? इस बच्ची को बर्बाद करके सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इसके घर बर्बाद हुआ है और इसे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। जी चाह रहा है मैं तुम्हें शूट कर दूं। वो गुस्से से ऐसे फबरे हुए थे जैसे बस नहीं चल रहा था कि रजा के मुंह पर 2-3 थप्पड़ हसीद कर दे और इसे सफा हस्ती से मिटा दे। किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे। खानदान भर में रुसवा करके रख दिया है तुमने। अब ऐसी नाखल्फ औलाद कभी किसी की ना हो। बहुतान बंदा तुमने एक बच्ची पर, मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर दी तुमने। कितनी दफा मैंने कहा मेरे साथ चलो, शारिक के सामने सारी बात क्लियर कर लेते हैं, मगर तुमने एक ना मानी। अब अंजाम देखो। नबील और शारिक जिद पर आ गए हैं और वो बच्ची बेघर हो गई है, न जाने किस हाल में और कहाँ होगी। इसी तसव्वुर ने इनको बिल्कुल मफलूज कर दिया था और वो कुर्सी पर गिर से गए थे और रजा चुपचाप खड़ा इनकी सारी बातें सुन रहा था। लोगों को क्या पता असल सूरत हाल क्या है, नवेरा और शारिक के दरमियान नाचाकी की असल वजह क्या है, मगर वो बच्ची तो बदनाम हो गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रजा सर झुकाए खड़ा था। नवाज का समझाना तो एक तरफ, वो तो अभी तक खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा था और अब इस खबर ने गोया जिस्म से जान खींच लेने की कोशिश की थी। अगर नवेरा ना मिली तो याद रखना मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। इसे बर्बाद करके तुम्हें भी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं। सुना तुमने? रजा की मुसलसल चुप ने इनके अंदर की तपिश को मजीद भड़का दिया था। गुस्से से इसे देखते हुए कमरे से निकल गए थे। नवेरा की आमद के 3 दिन बाद समान ने लाहौर का चक्कर लगाया था। शाम का वक्त था जब वो घर आया था। ऑफिस की गाड़ी से इसे घर ड्रॉप कर दिया था। वो अंदर आया तो सारा घर खाली था। चौकीदार की बीवी किचन से बरामद हुई थी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। जरिश कहाँ है? किचन में है। एतराफ का जायजा लिया था। किचन में है? अच्छा,
सामान इसे ब्रीफकेस थमाकर अंदर रखने का कहते हुए किचन की तरफ ही चला गया था। जबरदस्त नवीरा जी, इतना जबरदस्त टेस्ट है आपके हाथ में, मजा आ गया। जरीश ने किसी बच्चे को उठाया हुआ था, साथ साथ स्लेब पर रखे प्लेट में से कुछ खा रही थी, जबकि चूल्हे के सामने खड़ी लड़की देचकी की तरफ मतवज्जा थी। सामान के कदम ठिठक गए थे। अपने घर के किचन में एक अजनबी चेहरा देखकर हैरान हो गया था। सामान को कढ़ाई गोश्त बहुत पसंद है, वो बिरयानी भी बहुत शौक से खाते हैं। आप मुझे ये दोनों डिशें सिखा देंगी ना? थोड़ा बहुत तो आता ही है, मगर आप जैसा जायका मेरे हाथ में नहीं। मामा भी बहुत अच्छा पकाती हैं और नौशी भी, मगर किचन के मामले में खासी बहुत वाक़या हुई हूँ। एक अजनबी लड़की के साथ जरीश की इस कदर बेतकल्फी सामान को अंदाज़ा ना हो सका। ये हस्ती कौन है? कोई प्रॉब्लम नहीं, संजीदगी के साथ तवज्जो दो तो एक माँ में ही सीख सकती हो। जायका आहिस्ता आहिस्ता हाथ में आ जाता है, बड़े ठहरे लहजे में जवाब दिया गया था। जरीश, इस पुकार पर जरीश एकदम हैरान होकर पलटी थी। अरे आप! सामान को देखकर वो अजहद हैरान हुई थी। सामान बगैर किसी इत्तला के आया था। नवेरा ने भी पलट कर देखा तो सामान इसकी तरफ मतवज्जा था। इसने फौरन चेहरा मोड़कर दुपट्टा दुरुस्त किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? जरीश फौरन सामान की तरफ बढ़ी थी। सामान ने इसके बाजू में उठाए बच्चे को देखा। बच्चा बहुत प्यारा और सेहतमंद था। अभी आया हूँ। सामान ने बच्चे का रुखसार छुआ तो वो खिलखिला कर हाथ आगे बढ़ाने लगा। कौन है ये? सामान ने बहुत आहिस्तगी से पूछा। एक नजर रुख मोड़े खड़े वजूद को भी देखा। जरीश एकदम पजल सी हो गई थी। सामान को क्या बताना है वो सब तय किए हुए थी, मगर अब इसे देखकर इसका जहन बिल्कुल माउफ हो गया था। ये नवेरा आपी हैं और नवेरा आपी ये सामान है। नवेरा ने सिर्फ पलट कर एक नजर देखी। गायबाना तारुफ तो था ही। सामान को सामने देखकर इसे जरीश की लकी होने का एहसास हुआ। जरीश ने एक ही जुमले में तारुफ निपटाया। सामान ने उलझ कर जरीश को देखा था। आए बाहर चलते हैं। बच्चे को नवेरा की तरफ बढ़ाकर वो सामान की तरफ साथ बाहर आ गई। ये खातून कौन है और ये बच्चा भी? अभी बताती हूँ, आप बताएं कहाँ से आए हैं? कराची से या इस्लामाबाद से? 2 दिन पहले सामान से बात हुई थी, तब सामान कराची में था और अब इधर। मैं आजकल कराची में ही हूँ। अब्बू की तबीयत कुछ ख़राब है, चचा जान के साथ कराची में ही होता हूँ। दोनों बेडरूम में चले आए थे। खैरियत है ना? ताया अब्बू की तबीयत का सुनकर वो कुछ परेशान हो गई थी। हाँ बिल्कुल खैरियत है। सामान का अंदाज बड़ा संजीदा था। जरीश को महसूस हुआ कुछ ना कुछ बात तो हुई है शायद। 2 दिन से इसने मामा को भी कॉल नहीं किया था, वरना इधर की सूरत हाल का अंदाजा रहता। सामान ने कोट उतारकर इसे थमाया और फिर टाई की नोट ढीली की। तुमने बताया नहीं ये खातून कौन है? बिस्तर पर बैठते सामान ने फिर वही सवाल दोहराया तो जरीश कंफ्यूज हो गए। न जाने सामान का क्या रिएक्शन होता। आपसे मैंने एक आया की बात की थी ना, इसी सिलसिले में इनको रखा है, झिझकते हुए इसने कह दिया था। और सामान ने बड़ा हैरान होकर जरीश का चेहरा देखा था। आंखों में नवेरा का चेहरा दराया। वो कहीं से भी आया टाइप खातून नहीं लगती थी। नवेरा अब भी बहुत अच्छी हैं, फिर ज़रूरतमंद भी हैं। मतलब इनका बेटा है, इनका मियाँ अच्छा नहीं है, घर से निकाल दिया तो वो जॉब करने के लिए आ गए। तुम्हें कहाँ मिली थी? सामान को किसी भी तरह यकीन नहीं आ रहा था। इतनी खूबसूरती की मालिक, अच्छा लिबास और नाक में चमकती हीरे की लौंग। सामान एक नज़र में जो भी देख पाया था किसी भी तरह यकीन करने वाला नहीं था। अमजद ड्राइवर के रिश्ते में कज़न है, माँ बाप नहीं है, अजीज़ो कारब हैं, मगर आज के दौर में भला कोई किसी की जिम्मेदारी लेता है? शोहर ने छोड़ दिया तो अमजद के यहाँ आ गई। आपसे मशवरे के बाद मैंने ड्राइवर और चौकीदार दोनों से किसी आया का बंदोबस्त करने को कहा तो अमजद इनको ले आया। मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, 3 दिन से मेरे साथ है, पढ़ी लिखी और खुश शक्ल है। इसने सोचा समझा जवाब दिया तो सामान ने चंद पल जरीश को बहुत देखा। वो पजल होने लगी। क्या बात है, मैंने कुछ गलत कहा है? मैं अमजद को बुलवा लेती हूँ, बेशक इससे पूछ लें। नवेरा आपी के बारे में ज़्यादा वही जानता है। जाहिर है इनकी कज़न है। जो इसने मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। सामान ने एक गहरा सांस लिया। बात यकीन करने वाली तो ना थी, मगर अमजद का हवाला ऐसा था कि सामान को यकीन करना पड़ा। अमजद पिछले 15 साल से इनकी फैक्ट्री में ड्राइवर था। जरीश की वजह से इन्होंने इसे घर पर रख लिया था। वो काबिल एतमाद था। किरदार के लिहाज से भी अभी तक इसमें कोई गलत बात नहीं देखी गई थी और जरीश के लिए नया कोई ड्राइवर रखने का रिस्क भी नहीं लिया जा सकता। बज़ाहिर वो लड़की सुलझी हुई थी, मगर ओके, तुम मुलाजिमा को कहो अमजद को मेरे पास भेजे। आजकल के दौर में मुलाजिम पर एतबार नहीं कर लेना चाहिए। फिर भी मैं अमजद से मालूमात कर लेता हूँ। खाना खाएंगे ना? इसने पूछा और बाहर निकल आई। मुलाजमा से कहकर अमजद को क्वार्टर से बुलवाया और फिर इसे सारी बात समझाकर सामान को मुतमईन करने का कहकर कमरे में भेज दिया। नवेरा किचन का काम खत्म कर चुकी थी। इसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। यह सब मुलाजमा की जिम्मेदारी थी, मगर नवेरा फारिग बैठने के बजाय कुछ न कुछ करती रहती थी। नवेरा ने सामान का रवैया पूछा तो इसने सब बता दिया। वो परेशान हो गई थी। अगर तुम्हारे सोच को यकीन ना आया और इसने खुद से पता लगा लिया तो कुछ नहीं होगा। अमजद वही कहेगा जो मैं कह चुकी हूँ। आप परेशान ना हो, मैंने हर हाल में आपका साथ देने का वादा किया है, तो बेफिक्र है। अगर इनको किसी न किसी तरह शक हो भी गया तो मैं खुद देख लूंगी। वो मुतमईन थी। दोनों ने मिलकर टेबल सजाई। नवेरा ने अपने कमरे में
खाने को तरजीह दी। जरिश की जिद के बावजूद वो ना मानी थी। तो क्या नाम है इनका? हाँ नवेरा, इनको भी खाने पर बुला लो। अमजद से बात करके सामान मुतमईन हो गया था। शायद इसीलिए नवेरा की गैर मौजूदगी पर जरिश ने कहा, मैंने इनको कहा भी था मगर इन्होंने मना कर दिया, वो कमरे में ही खाना खाएंगे। टेबल पर बिरयानी और कढ़ाई गोश्त के अलावा रोटियां, सलाद और फिरनी थी। तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मैंने आ जाना है? अपनी प्लेट में बिरयानी डालते सामान ने जरिश पूछा तो वो हंस दी। मैं तो यूं ही नवेरा आपी से सीखने को कहा था, इन्होंने ही सब कुछ पकाया है, मैंने सिर्फ इनकी मदद की है। आपकी आमद तो बस इत्तफाकिया है, कभी तो खुश कर दिया करो। सामान की बात पर वो एकदम झेम गई थी। नवेरा आप भी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। सामान ने बगौर इसे देखा। नवेरा की आमद ने इसके मिजाज पर खासा खुशगवार असर डाला था। वही पुराना पुरएतमाद अंदाज लिए हुए थी और हद से ज्यादा मुतमईन और पुरजोश थी। मुसलसल नवेरा के नाम के गुण गाते हुए मैंने अमजद से पूछा है, इसने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो काबिल गिरफ्त हो? हम अजनबी खातून हैं, तुम इससे शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लेना। वैसे अमजद इससे अच्छी तरह वाकिफ है, काबिल एतमाद और काबिल भरोसा आदमी है हमारा, कई साल से जानता हूँ। इसके भरोसे पर इस आदमी को, इस खातून को रख लेने में कोई हर्ज नहीं। खाना खाते हुए सामान ने कहा तो वो सारी ला गई। अंदर ही अंदर खुशी से बुरा हाल था। मैं सुबह चला जाऊंगा, बस तुम्हारी तरफ से फिक्रमंदी थी कि तुम तनहा परेशान न हो। अब इन खातून को देखकर कुछ मुतमईन हो गया हूँ। लगता है काफी बेतकल्फी हो गई है तुम लोगों की आपस में। आप रुकेंगे नहीं? इसने खाना छोड़कर सामान को देखा था। नहीं। क्यों? घर में फरा की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से मुसलसल बुखार की हालत में है। अब्बू इसकी वजह से परेशान है। चचा जान अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ और इस्लामाबाद तो मैनेजर देख लेते हैं, मगर घर में खुद ही देखना पड़ता है। फरा को क्या हुआ है? इसने कुछ तशवीश से पूछा था। बस बुखार है। तुम चलोगी कराची 1-2 दिन के लिए? नहीं, इस हफ्ते तो मुमकिन नहीं है, अगली बार आपके साथ ही चलूंगी। इसने इनकार किया था। सामान ने सर उठाकर इसे देखा था। किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, पहले अकेले घबराहट होती थी, अब नवेरा आपी की वजह से वो भी नहीं हो रही। चलो अच्छी बात है। बाकी का खाना दोनों ने खामोशी से खाया। खाने के बाद मुलाजमा बर्तन समेटने लगी तो वो नवेरा के रूम में चली आई। पिछले 3 दिन से वो नवेरा के साथ इस कमरे में ही थी। नवेरा खाना खाने के बाद बच्चे को सुला रही थी। इसे देखकर मुस्कुराई। अमजद की बातों से सामान मुतमईन हो गए हैं, मगर इन्होंने आपका शनाख्ती कार्ड मांगने को कहा है। डॉक्यूमेंट्स तो मैं साथ लेकर आई हूँ, इस ख्याल से कि कभी किसी जगह जॉब करने की ज़रूरत पड़े तो मसला ना हो, मगर कार्ड के जरिए वो कुछ मालूम ना करवा लें। आप परेशान ना हो, वो सुबह वापस जा रहे हैं, फिर चक्कर लगाएंगे तो देख लेंगे, मैं संभाल लूँगी। बस आपको बताना था कि अगर वो शनाख्ती कार्ड का पूछे तो कह दीजिएगा, मैं दे दूँगी, बाकी मैं खुद ही देख लूँगी। ठीक है? थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। नवेरा ने ममनूयत से इसे देखा। अगर जरिश इसका साथ ना देती, न जाने अब वो कहाँ रुल रही होती। शारी के पास दोबारा जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे हस्बैंड की पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, तुम लोगों का कपल बहुत परफेक्ट और शानदार है। कज़न है ना तुम्हारे, जीत आया के बेटे हैं। इसने अपने बारे में नवेरा को कुछ भी नहीं बताया था। तुमने अपने घर वालों और रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी नहीं बताया? सिर्फ 3 बहनें हैं। आदि आप भी फुप्पो के बेटे से ब्याही गई हैं, नौशीन की भी शादी हो चुकी है, फिर मैं हूँ। मेरे बारे में आपको इल्म है। हमारे पापा 2 भाई और 1 बहन है। ताया अब्बू के 3 बेटे और 1 बेटी। उस्मान भाई और समान के बाद फरा और अली हैं। फरा मेरी ही हम उम्र है। इसकी मंगनी हादिया आपा के देवर और फुप्पो के छोटे बेटे से हो चुकी है। अभी तो पढ़ रही थी। तो इतनी जल्दी यूँ कम उम्री में तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी शादी क्यों कर दी? सवाल ऐसा था कि जरिश को समझ ना आया कि क्या करे। बस पापा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, आपको तो पता है, हार्ट पेशेंट है। नौशी की शादी कर रहे थे। ताया अब्बू के कहने पर मेरी भी शादी करती। तालीम में छोड़ना नहीं चाहती तो सामान ने मुझे यहाँ एडमिशन दिलवा दिया। इसने मुस्कुराकर चंद लफ्ज़ों में बात समेट ली। खुशकिस्मत हो तुम, वरना शादी के बाद शौहर बीवी के इतने लाड कहाँ उठाते हैं। मैं सब सोच चुका था। नवेरा के कहने पर वो मुस्कुरा दी थी। वो इस मकाम पर कैसे पहुंची थी नवेरा को बता कर दुखी नहीं करना चाहती थी। अच्छा था एक पर्दा दरमियान में हाइल ही रहता, वरना अपनी ज़ात को डिस्कस करने में अजियत ही पेश आती है। यूँ अपने माँ बाप सब रिश्तेदारों से दूर अजनबी शहर में सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए रुकना। अगर ताहिरा बेगम ने वो सब ना किया होता तो इस वक्त ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खुशगवारियत होती। वो मैं ज़िंदगी को धक्का ना लगा रही होती। नवेरा का यूं घर छोड़कर चले जाना एक ऐसा धचका था कि लगता था सबकी ज़िंदगी में एक क़यामत सी आ गई है। शारिक ज़मान के लिए नवेरा का यह कदम किसी शदीद शौक से कम नहीं था। वो अकेली ना थी, इसके पास मसहब भी था। ना जाने वो कहाँ थी, किस हाल में थी। ये सवाल ऐसे थे कि किसी पल चैन ना आ रहा था। हर जगह देख डाला था, ऐसी कोई जगह ना छोड़ी थी जहाँ इसकी तलाश में हर मुमकिन कोशिश ना कर डाली थी। जब हर तरफ से नाउम्मीदी और मायूसी में देखने को मिली तो ना चाहते हुए भी इसे इंस्पेक्टर अंजुम के
खिदमत लेना पड़ी थी, मगर ताहाल कामयाबी का कोई सिरा हाथ ना आया था। नवेरा की यूँ गुमशदगी बेशक हमीद चचा और फारूक चचा के घराने के अलावा रिश्तेदारों के इल्म में ये बात नहीं आई थी, मगर कब तक इस खबर को छुपाया जा सकता था। शारिक ज़मान जिसने कभी लोगों की बातों की परवाह ना की थी, पहली बार इस संगीन सूरत हाल का एहसास हुआ था। नवेरा ने यह कदम क्यों उठाया? जो लोग सूरत हाल से बेखबर थे, इनके सवाल की बिरछी तेजधार आले की ज़रब से कम ना थी। अम्मा और रिफत बाजी हर पल आईना दिखाती थी। रिफत बाजी ने वापस जाना था, मगर अब सब कुछ भुलाकर अम्मा को संभाले हुए थे, जिनकी तबीयत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी। मगरिब के वक्त वो अंजुम के साथ सारा दिन खवार होकर घर आया तो लाउंज में बैठे नवाज फारूक के साथ रजा हमीद को देखकर शारिक ज़मान का फिशार खून एकदम तेज हुआ था। जी चाहा कि पिस्टल लेकर और सारी की सारी गोलियां रजा हमीद के हलक में उतार दे। तुम इंतहाई नफरत से इसे देखा तो वो उठकर खड़ा हो गया। इतने दिन खुद से लड़ने के बाद आज एतराफ़ जुर्म करने की हिम्मत आ गई। शारिक बैठकर आराम से बगैर गुस्सा किए बात सुन लो। रजा तुमसे माफ़ी मांगने आया। अम्मा के कहने पर इसने इंतहाई गज़ब से सबको देखा था। क्यों आया है ये यहाँ? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे अब इस झूठे घटिया इंसान की कोई बात नहीं सुननी। वो सख्त तैश के आलम में पड़ पड़ा था। शारिक तहम्मुल से तुम इसकी बात नहीं है, तहम्मुल मुझ में नहीं, कुछ सुनना मुझे किसी से कुछ भी नहीं। इसने गजब के आलम में अम्मा की बात काट दी थी। शारिक दोस्त गुस्से और जज्बात का अब कोई फ़ायदा नहीं, पहले ही तुम लोगों की जज्बातियत के हाथों आज ये सूरत हाल पेश आ चुकी है। तुम बैठकर सुकून से ठंडे दिलो दिमाग से असल हकाइक से शनासाई तो हासिल करो। प्लीज़ यार। नवाज उठकर इसके पास चले आए। इसके कंधे पर अपना बाजू रखकर इसे समझाना था। तुम इसे क्यों लेकर आए हो? वो शर्मिंदा है, वो अपने सब गुनाह कबूल करने को तैयार है। इससे गलती हो चुकी है, वो इस गलती का इकरार करना चाहता है। शारिक ने लब भींच लिए थे। इतना कुछ हो जाने के बाद रजा को अब अपनी गलती की संगीनी या इस्लाह का ख्याल आया था। इधर बैठो, अब जज्बातियत का कोई फ़ायदा नहीं। नवेरा एक इंतहाई कदम उठा चुकी है, कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, मगर जो गलतियाँ हो चुकी हैं इनकी इस्लाह तो की जा सकती है। नवाज ने बाजू से पकड़कर इसे सामने सोफे पर बिठा दिया था। शारिक ने सख्ती से लब भींच लिए थे। रजा कम उम्र और जज्बाती था, इससे बहुत सी गलतियां हुई थी। तुम्हें माफ़ करने का नहीं कहता, मगर अपना दिल साफ करो और गलत फहमियाँ दूर करो प्लीज़ यार। यही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। रजा इसी तरह खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। शारिक भाई, मैं अपने सब गुनाह कबूल करता हूँ, मैंने गलत बयानी की, मगर खुदा की कसम नवेरा भी मेरे बारे में कतई बेखबर थी। जो कुछ भी था सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से था, सब एक तरफा था। वो सब मेरे एहसासात और जज्बात थे, सिर्फ मेरी जज्बाती हिमाकतें। वो सर झुकाए कह रहा था। शारिक ज़मान जो इसे कीनातोज़ नज़रों से घूर रहा था एकदम अपनी जगह से उठा। शट अप। इसका हाथ इतने भरपूर अंदाज में रजा के चेहरे पर लगा था कि वो लड़खड़ाते हुए सोफे पर जा गिरा था। शारिक अम्मा की चीख के साथ रिफत भाजी और नवाज भी एकदम आगे बढ़े थे, मगर शारिक ने सोफे पर गिरे रजा हमीद को गिरबान से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया था। तुम्हारे लिए ये सब जज्बाती हमाकतें थी? किसी की जिंदगी से खेल गए और हमाकत का नाम लेते हो? शारिक ज़मान ने दूसरा थप्पड़ मारा। शारिक, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। नवाज ने आगे बढ़कर शारिक से इसका गिरबान छुड़ाना चाहा था, मगर शारिक ने इससे परे धकेल दिया था। तुम दरमियान में ना बोलो, ये तुम्हारा मामला नहीं। मैं अब तक कोशिश कर रहा था मेरा इससे सामना ना हो। मैंने बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला हुआ था, मगर अब ये खुद सामने आया है तो जान से मार डालूंगा मैं इसे। इसने और सख्ती से इसका गिरबान पकड़ा था। ये क्या पागलपन है शारिक? जितना कसूर इसका है इससे ज़्यादा तुम्हारा अपना है। इसे तो जान से मार डालने की बात करते हो। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो फिर अपने गुनाह अपनी गलतियाँ कबूल कर रहा है, तुमसे तो इतना भी ना हो सकता। बहुत अच्छा किया नवेरा ने, मगर इस सारे किए कराए की तुम खुद जिम्मेदार हो। छोड़ो इसे। नवाज ने पूरी कुव्वत से रजा का गिरबान छुड़ाकर शारिक को पीछे की तरफ धकेल दिया और शारिक गजब से नवाज को घूर रहा था। हाँ, मेरा कसूर है, मगर इस सब का जिम्मेदार सिर्फ ये इंसान है। मैं वक्ती तौर पर जज्बाती हुआ था, मगर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते ही मैंने अपनी गलतियाँ कबूल कर ली थी। नवेरा के घर में आने पर चुप साध ली थी। ये नवेरा ही थी जिसने हर मुकाम पर मुझे एहसास दिलाया कि ये शख्स हमारे दरमियान किसी खलीज हायल कर चुका है। कैसी खलीज हायल कर चुका है? वे एक दफ़ा फट पड़ा था। ये वो सच था जो वो खुद से भी नहीं बोलना चाहता था। अभी इंतहाई तहस में वो अपने जज्बात अश्कार कर गया था। जब तुमने अपनी गलतियां कबूल कर ली थी तो फिर यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची? रजा ने अगर गलती की थी तो तुम तो अक्लमंद थे ना, दानिशमंदी से हालात का जायज़ा लेने की कोशिश करते। नवाज फारूक ने सख्ती से इसे कटहरे में ला खड़ा किया था और शारिक ज़मान वो सख्ती से लब भींच गया था। रजा ने जो किया सो किया। हालात को इस हद तक लाने के जिम्मेदार सरासर तुम खुद हो।
तुम खुद। नवाज का लहजा सच्चा था मगर बे इंतहा कड़ा था और शारिक लब बेंच कर लंबे लंबे ढंग पड़ता वहां से चला गया था। शारिक शारिक रिफत बाजी गुमसुम खड़ी थी मगर शारिक को इस तरह मंजर से हटते देखकर घबरा कर इन्होंने आवाजें दी थी मगर सब बेसुधा। वो गुस्से और तैश से ना सिर्फ लाउंज से निकल गया था बल्कि बड़े रेश अंदाज में गाड़ी गेट से बाहर निकालते घर से भी निकल गया था। वो सारी रात अस्पताल में एडमिट रही थी। अगली सुबह तक वो दवाइयों के ज़ेरे असर गाफिल रही थी मगर 12 बजे के बाद इन्हें होश आया तो इनकी वही कंडीशन थी। असजद, मेरे बच्चों के पास ले जाओ, मैं पाँव में गिर कर सबसे माफ़ी मांग लूँगी। मैंने बहुत गलतियाँ की है, बहुत गुनाह किए, मैं सब कबूल कर लूँगी। एक बार मेरे बच्चे के पास मुझे ले जाओ या इनको बुलवा दो। इनकी वही हालत और क्रियाजारी, इनकी अजियत और बेबसी महसूस करते हुए असजद ने अहमद लाज के मकीनों से रब्ता करने की फैसला किया था। अहमद लाज फ़ोन किया और वहाँ फ़रा को तायरा बेगम की कंडीशन और अस्पताल का बताकर इसने फ़ोन बंद कर दिया मगर इसके बाद असजद के लिए लम्हा लम्हा अजियत बनता गया। खाला को तसल्ली दी थी मगर वो तो गोया सरापा इंतज़ार बन गई थी। 2 बजे के करीब सामान के हमरा अली और फ़रा को देखकर असजद की सांस में सांस आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो अस्पताल की राहदारी में ही मिल गया था। अली और सामान से मुसाफे के बाद फ़रा को देखा। सूजी सुर्ख आंखें, लगता था वो कितनी देर तक रोती रही है। कहाँ है अम्मी? दोनों भाई चुप ही थे मगर वही बोली थी आए। वो इनको लेकर कमरे में चला आया था। तायरा बेगम आंखों पर बाजू रखे बिस्तर पर चट लेती हुई थी। अम्मी? तायरा बेगम ने तड़प कर बाजू आंखों से हटाया था। अली फ़रा और सामान को सामने देखकर इनके बहते आंसू थम से गए थे। फ़रा वो बिस्तर से उठ बैठी थी। फ़रा बेकरारी से इनसे लिपट गई। वो जो भी थी मगर पहले माँ थी। इनकी सब गलतियों को नज़रअंदाज किया जा सकता था मगर माँ की बीमारी को नहीं। सामान ने लब भेज कर अपनी रोती बढ़ती माँ को देखा था। वो सीधा लाहौर से आया था और फ़रा को रोते देखकर असजद की कॉल का इल्म हुआ तो वो अब दोनों को साथ लेकर यहाँ आया था। वो पिछले दिनों से मुसलसल इधर ही था जब से अम्मी घर छोड़ कर गई थी। फ़रा बीमार थी और अली एब्सेंट। अब्बू जाहिर ना कर रहे थे मगर फ़र्क तो पड़ा था। ऐसे हाल में सामान अहमद का वजूद दोनों बहन भाइयों के लिए बहुत मावन साबित हुआ था। जैसा कि अब दिल में 1000 गिले शिकवे सही मगर माँ की ख़राब तबीयत का सुनकर इनसे रहा नहीं किया। चुपचाप दोनों को लिए इधर आ गया और अब तायरा बेगम की हालत देखकर दिल में तासुफ के साथ मलाल भी जागा था। फ़रा इन्हें चुप कराने लगी तो असजद इशारा करने पर वो अली को भी वहीं आने का कहकर इनके साथ बाहर निकल आया था। क्या हुआ था अम्मी को? कुछ खास नहीं, बीपी नॉर्मल नहीं है, अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। कल रात में इन्हें इधर ही ले आया था, अब बेहतर है। असल सूरत हाल की बजाय असद ने सिर्फ यही बताया था। न जाने इन लोगों का क्या इरादा था। खाला इन लोगों को असल सूरत हाल बताती भी हैं या नहीं, इसीलिए वो टाल गया था। बाकी लोग किधर हैं? तारा को इन तन्हा और सिर्फ अजद को देखकर सामान ने संजीदगी से पूछा तो अजद के चेहरे पर बड़ी जहरीली सी मुस्कुराहट आई थी। खाला को मैं हॉस्पिटल लेकर आया, बाकी कोई नहीं आया। हाँ, अम्मी ने सुबह फ़ोन किया था। वैसे भी खाला का असल और हकीकी रिश्ता तो तुम लोगों से है, तुम लोग आ गए हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम लोगों से बढ़कर इनको कोई और खैर ख्वाह होगा या इन्हें किसी और की ज़रूरत होगी। बात ऐसी थी, सामान कई लम्हे तक चुप रहा था। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? घर ले जा सकते हैं इन्हें? सामान ने मजीद कुछ और पूछे बगैर बात पलट दी थी। सामान असद के साथ जाकर डॉक्टर से मिलकर कुछ मुतमईन हो गया था। परेशानी वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ डिप्रेशन था। ताहिरा बेगम की तबीयत अभी तक नॉर्मल नहीं थी। फ़रा को सामने देखकर, अली को गुमसुम और सामान की इंतहाई संजीदा अंदाज को देखकर इनके अंदर भी एहसास ने उदम मचा दिया था। ये इनके बच्चे थे, इनका रवैया अगर ऐसा ना होता तो सईद अहमद का कैसा होगा? क्या वो इन्हें अब कबूल कर लेंगे? इस आलम में जब इनके साथ पछतावों के सिवा कुछ नहीं था। अपनी गलतियों पर नदामत का बोझ कंधों पर उठाए वो वापस पलटी थी। कैसरा आपा पर कितना मान और भरोसा था और अब कुछ भी बाकी ना बचा था। गोया अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। सामान की गाड़ी में घर आते इनकी तबीयत कई बार बिगड़ी थी। फ़रा मुसलसल इनके हाथों को अपने हाथों में लिए हुए थी और अली जो हमेशा इनसे खाइफ रहा था बात बेबात उलझ पड़ता था। इंतहाई गुमसुम हालत में इनको बाजू के हिसार में लिए पिछली सीट पर इनके साथ था और सामान, इसने इनसे बराह रास्त एक लफ्ज़ भी ना कहा था। वो एक अरसे से इनसे महव कलाम होना भूल चुका था। वो बुलाती या पुकारती भी तो नज़र झुकाए एक दो लफ्ज़ से ज़्यादा कुछ ना कहता था। इन्होंने इनके साथ जो भी किया था मगर सामान ने कभी ज़बान से इन्हें नहीं जिताया था। हाँ, सामान की खामोशी एक संजीदा निगाह ही इनके अंदर अपने फेल पर वहशत भर देती थी और फिर एक गलती करने के बाद भी वो आपा के कहने पर गलतियां करती चली गई थी। सामान की शादी, ज़रिश की ज़िद, इनका इस घर में ना आना, इस्लामाबाद चले जाना और फिर इनका वहाँ जाकर दोनों खसूसी ज़रिश को जिज करना। वो अपनी किन किन गलतियों को दोहराती, इनके बावजूद सामान ने इन्हें लेने आया था। सारा रास्ता इनकी आंखें बरसती रही। अली के बाजू के हिसार का लम्स बड़ा पुरसुकून था मगर इनकी अपनी लफ्ज़िशें उम्र भर की हमाकतें इनके वजूद के अंदर कांटे बन गई थी। वो कैसे जिएंगी?
अभी तो सईद अहमद का सामना भी करना था। उस्मान, शाइस्ता, सऊद अहमद और ख़ास तौर पर जरीश, नफीसा आपा और अपने सब भाइयों की वो किसी के सामने भी निगाह उठाकर जीने के काबिल ना रही थी। हाय कैसरा आपा, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? किस जुर्म की सजा दी आपने मुझे? बस मेरी गलती ये थी कि मैं हद से ज़्यादा बेवकूफ़ थी। सबके समझाने बुझाने के बावजूद आपकी हर बात पर सोच चुका गई। सारी उम्र गंवा दी मैंने अपनी गलतियों लग्जिशों में। रिश्ता तो एक तरफ, ना शोहर रहा ना औलाद। घर आकर फराह और अली के सहारे इसे अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटते हुए भी इनकी तबीयत का वही आलम था, वही शिकस्तगी, वही इज़्तिराब, वो गिरिया अफजारी बरकरार थी। वो बचपन से ही कम को दब्बूसी और कैसरा आपा के ज़ेर तसल्लुत रही थी। इन्होंने जो कहा फौरन माना। हाँ, शाइस्ता से दोस्ती थी, मगर कैसरा आपा शाइस्ता को नापसंद करती थी। कैसरा आपा की शादी हुई और फिर बेटी, मगर इनका असर इनकी ज़ात पर इसी तरह कायम था। जब इन्होंने उठते बैठते बात बेबात सऊद अहमद की तबीयत का सुलझापन, इनकी शख्सियत की दिलकशी, गुफ्तगू के अंदाज़ और मिलनसारी को इस तरह सराहना शुरू कर दिया, वो आपा की बातों के शहर में जकड़ती चली गई। वो खूबसूरत थी, सुलझी तबीयत की मालिक थी, मगर बदएतमादी की कमी ने इन्हें इस कदर बेएतमाद बना दिया था कि इन्हें आपा की हर बात हरफे आखिर लगती थी। आपा जिसको पसंद कर लें, इनको पसंद करना इनकी मजबूरी थी, और ये मजबूरी एक झूठे शहर की सूरत ताहिरा की शख्सियत पर भी हावी होती चली गई थी। सऊद अपनी खाला से मिलने आया और आपा को खबर होती तो वो इसे हर पल इसके आगे पीछे दौड़ाती फिरती और इनकी हर बात पर ईमान लाती थी। आपा ने इसे एहसास दिलाया कि सऊद अहमद जैसे मर्द बहुत किस्मत वालियों को मिलते हैं। अगर ऐसा नायाब घोड़े ताहिरा को हिस्से में आ जाए तो इससे बढ़कर खुश किस्मत कौन हो सकता है। और पहली बार ताहिरा को एहसास हुआ कि आपा क्या चाहती हैं। इन्हें आपा बड़ी अच्छी लगी, जो इनके लिए इतना सोचती हैं। और फिर इसने सऊद अहमद की नज़रों में अपना मकाम बनाने के लिए इसने सऊद अहमद की नज़रों में वो मनचाहा मकाम हासिल करने के बजाय बुरी तरह गिरती चली गई। शाइस्ता के खिलाफ कदूरत और शदीद नफरत ने जन्म लिया, और ये नफरत बजाय ख़त्म होने के हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती चली गई। सईद अहमद का रिश्ता इनके लिए आया, ये इनकी फैमिली के हर मर्द के लिए बड़े वक्त की बात थी, मगर आपा ने इस बात से एहसास दिलाया कि अच्छा नहीं हुआ। अगर कभी सईद अहमद को इसके जज्बात का इल्म हो गया तो वो कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगी। वो इसे मुख्तलिफ बातों से डराती रहती और वो डरती रहती। इनके इनकार के बावजूद ये शादी हुई, और सईद अहमद ने शादी के अवलीन शब में ही इनको जो अहम होने का एहसास दिलाया, वो भी अपनी ज़ात की बदएतमादी को ख़त्म ना कर पाई। शायद सईद अहमद की बेपनाह मोहब्बत पाकर वो अपनी गुज़श्ता हिमाकतें भूल जाती, मगर कैसरा आपा भूलने देती, वो भूल पाती ना। ताहिरा ने जब भी खुश होना चाहा, कैसरा आपा की कोई ना कोई बात ऐसी होती कि शाइस्ता सऊद से खार खाने के साथ साथ सईद अहमद से भी उलझने लगती थी। उस्मान की पैदाइश के बाद वो संभलने लगी थी। उस्मान का वजूद ताहिरा को अपने और सईद अहमद के दरमियान रिश्ते की नौइयत समझाने में कामयाब हो रहा था। फिर इन्होंने शऊरी तौर पर सईद अहमद की ज़ात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, इनकी छोटी मोटी हर ज़रूरत का ख्याल रखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मोहब्बत ताहिरा के दिल में जगह बना रही थी, वो नॉर्मल हो रही थी कि अल्लाह ने इन्हें फिर से खुशखबरी सुना दी। सईद अहमद भी ताहिरा को नॉर्मल होते देखकर पुरसुकून रहने लगे। उस्मान की दफ़ा तो सिर्फ एक मजबूरी थी, मगर उस्मान की पैदाइश ने इन्हें हकीकतन एहसास दिलाया कि वो बहुत ख़ास हैं। सईद अहमद के लिए, इनकी सारी फैमिली के लिए भी सईद अहमद की मोहब्बत ने ताहिरा को अपने हिसार में जकड़ना शुरू कर दिया था, और ताहिरा ने भी गुज़श्ता सारी बातों को बुलाकर सईद अहमद से मोहब्बत को अपने दिल में जगह देना शुरू करती थी। ज़िंदगी का वो दौर बड़ा सुकून बख्श और मोहब्बत भरा दौर था, मगर कैसरा आपा की फिर से बेजा मुदाखलत ने इन्हें अपने हिसार में लेना शुरू कर दिया। वो ताहिरा की बदलती कैफियत और जज्बात से खुद आगाह हुई थी, सो वो कैसे गवारा कर लेती। इन्हें उठते बैठते इनके गुज़श्ता हिमाकतें याद दिलाना शुरू कर दी। वो खौफ का शिकार होने लगी। अगर किसी दिन सईद को पता चल गया शादी से पहले वो क्या सोचती रही हैं तो न जाने क्या कर बैठे। 2 बेटों की माँ होना भी एक फ़ख्र था। फिर आपा की मुसलसल ब्रेन वॉशिंग थी कि वो शाइस्ता से बर्मिला नफरत का इजहार करने लगी, और वो दिन भी ऐसा ही था जब इसके ज़हम और तंजों ने शाइस्ता को भी ज़र्फ का दामन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वरना इससे पहले वो हमेशा पहलू तही करती थी। मगर इस दिन वो चुप ना रही, और इन दोनों की लड़ाई में राज अश्कार होता चला गया। जब ताहिरा के नज़दीक अब सरासर एक हिमाकत था। सईद अहमद ने सिर्फ सब सूरत हाल को अपनी नज़रों से देखा था। इनके नज़दीक ताहिरा का ये ऐसा गुनाह था कि वो कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। बात बिगड़ती गई, और कैसरा आपा को इसने
बुलवा कर मामला सुलझाने का कहा, मगर आपा ने बात सुलझाने के बजाय इसे अपने साथ जाने की जिद पकड़ ली। वो किसी भी सूरत ये घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। सईद अहमद का दिल साफ करना चाहती थी, मगर कैसरा आपा ऐसा नहीं चाहती थी। वो इसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई थी। सईद अहमद ने बच्चों को जबरदस्ती पास रख लिया था। आपा के साथ गुजारे इन दिनों की बेबसी और औलाद की बिना झेली जाने वाली तड़प के गवाह थे, और इन दिनों से ताहिरा के अंदर हर एहसास को निकाल फेंका था। इनका घर तबाह करने का सबब सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता थी, और फिर बुजुर्गों की मुदाखलत से हालात बज़ाहिर नॉर्मल हो गए। वो दोबारा घर में आ गई थी, मगर सईद अहमद के लिए वो एक नकारा शय से भी कम हैसियत होकर रह गई थी। वो इनके दिल से उतर चुकी थी। अब तो सिर्फ बुजुर्गों और अपने बच्चों की वजह से समझौता कर रहे थे, और इस बात का एहसास इन्होंने ताहिरा को हर लम्हे दिलाया था। ताहिरा के अंदर की औरत जो सब बुलाकर सिर्फ बच्चों की वजह से आ गई थी, सईद अहमद का रवैया देखकर फिर से नफरत का मुजस्मा बन गई थी। इन्होंने भी सब लिहाज बलाए ताक रखा था। सईद अहमद ने इनकी पूरी जिंदगी को शक के तराजू में तोलना शुरू कर दिया था, और इन्होंने इनको अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाने की ज़रूरत ना समझी। दोनों अपनी अपनी जगह पर थे, और दरमियान में फासलों की एक तवील खलेज। वक्त कुछ और सिरका। सईद अहमद ने भी शायद हालात से समझौता कर लिया था, या फिर ये भी इनको अजियत देने का एक और अंदाज था। पहले फरा और फिर अली के अमन ने ताहिरा को बज़ाहिर मजबूत कर दिया था, मगर इनके दिल में मौजूद शाइस्ता के लिए नफरत ने और ही रुख इख्तियार कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने खुद को इस घर में एडजस्ट कर ही लिया था। सईद अहमद की वही लाताल्लुकी थी, मगर अपने बच्चों की वजह से वो कभी कभार इन्हें भी अहमियत दे जाते थे, मगर दिल में वो पहले वाला मकाम ना दे पाए थे। ताहिरा के माँ बाप और बहन भाई सब समझाते रहते, मगर इन्होंने पहले कौन सा किसी की मानी थी। इनका पूरा कंट्रोल तो कैसरा आपा के हाथ में था, और फिर सारी उम्र गलत फहमियाँ ही की थी, पहले हादिया और उस्मान के मामले में, और फिर जरीश और समान के मामले में। आज वो जिस मकाम पर थी वहाँ कुछ भी ना बचा था, ना मोहब्बत ना नफरत, सिर्फ पछतावे थे। कैसरा आपा ने इनसे हमेशा अपने मतलब पूरा किया था। अज़्ज़त की बातों पर ना भी यकीन करती, मगर फिर भी सच था। आपा ने हर बार इनसे लाखों हत्याए थे। कोई ना कोई ज़रूरत है का कहकर वो कुछ ना कुछ मांगती रहती थी। कभी इन्होंने वापस ना किए और ना ही इन्होंने लिए। सईद अहमद ने ना कभी पूछ कुछ की, ना जो दिया है कभी पलट कर हिसाब लिया। वो नफरत की ऐनक उतार कर देखती तो शाइस्ता से ज़ाती तौर पर कोई प्रकाश ना थी। इनकी तीनों बेटियों भी सुलझी हुई हमदर्द तबीयत की थी। इतने साल नफरत करते गुजार दिए थे, मगर आज दोनों हाथों से खाली थी। सारा इल्ज़ाम कैसरा आपा पर डालकर वो खुद को बरी-उज़्ज़मा करार नहीं दे सकती थी। आज पछतावे थे, आंसू थे, नदामत थी, मगर मोहब्बत ना थी। इन्होंने आंखों से बाजू हटाकर मोहब्बत से इनका सर दबाती अकलौती लाडली और चहेती बेटी को देखा। क्या हुआ? इन्हें यकटुक अपनी तरफ मतवज्जा पाकर इसने खाइफ होते माँ को देखा। बेख्तियार इसका हाथ थाम कर वालिहानापन से चूमते हुए वो रोती थी। अम्मी क्या बात है? फरा घबरा गई थी। अली और समान भी कमरे से बाहर गए हुए थे। अली और समान कहाँ हैं? फरा को यूं परेशान देखकर इन्होंने अपने आंसू साफ करते पूछा था। ये वो औलाद थी जिसको वो अपनी अना और नफरत की वजह से रद्द करती रही थी। अली और भाई बाहर निकले हैं, बुलवाओ इनको। इन्होंने सर हिला दिया। फरा बाहर आई तो समान गुमसुम से अंदाज में सोफे पर बैठे न जाने किन सोचों में गुम था, जबकि अली गायब था। भाई समान ने इसे देखा। अली कहाँ है? कमरे में गया है। क्यों, खैरियत है? अम्मी कैसी हैं? आपको बुलवा रही हैं, मैं ज़रा अली को देख लूँ। वो समान को कहकर खुद अली के कमरे की तरफ चल दिया था। समान चुप कमरे में पहुंचा तो वो आंखों पर बाजू रखे शिद्दत से रो रही थी। अम्मी। समान अहमद फौरन इनके पास पहुंचा था। क्या हुआ? इनके पास बैठकर बाजू थामना चाहा था, मगर वो तो गोया जब्त ही खो बैठी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, बहुत दिल दुखाया तुम सबका। ना मैं अच्छी माँ बनी, ना अच्छी बीवी साबित हुई। इनकी गिरियावजारी बड़ी शिद्दत लिए हुए थी। समान ने बहुत सबाव थे इन्हें बाजू के हिसार में लेकर खुद से लगा लिया था। इन्हें याद नहीं था कि अपनी औलाद को गले से लगाया हो या खुद से चिमटा कर कोई मोहब्बत की हो। वो आज सब फासले ख़त्म किए बड़ी शिद्दत से अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रही थी। मैं गलत थी, हमेशा सबसे नफरत की, खुद साख्ता मफरूज़ों पर कायम रही। कभी अपनी नफरत के हिसार से बाहर निकलकर असल चेहरा देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं सबकी गुनाहगार हूँ, तुम सबकी, तुम्हारे बाप की, तुम्हारी। आज एतराफ़ का दिन था। मैंने अपनी औलाद को बहुत तकलीफ दी, और सबसे बढ़कर आपा की सब बातों को मानते और घटिया इल्ज़ाम पर उतर आई थी। वरना क्या मैं नहीं जानती मेरी औलाद कैसी है? तुम पर तो अपनी ज़ात से बढ़कर यकीन था मुझे। वो समान गुमसुम इनके एतराफ़ात सुन रहा था। ये किस मकाम पर आकर वो एतराफ़ कर रही थी, और जब वो चुप हुई तो खुद पर नदामत का ऐसा हिसार खींचा के समान से नज़र मिलाने के काबिल न रही।
آپ لیٹ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، خود کو ریلیکس رکھیں۔ سامان کا انداز بڑا نارمل تھا۔ طاہرہ بیگم نے بڑی بے چارگی سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا تو سامان ہلکے سے مسکرا دی۔ طاہرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں دبائے انہیں ریلیکس کرنا چاہا۔ سامان نے، تم کچھ نہیں کہو گے؟ مجھے برا بھلا اتنی زیادتیاں کی ہیں میں نے، کیسی ماں ہوں میں؟ کم از کم مجھے الزام ہی دے دو۔ وہ سامان کے اطمینان پر اور شدت سے روئی تھی۔ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں امی، ٹھیک ہے جو بھی ہوا بہت غلط ہوا، مگر اب پچھتانے اور غلطیوں کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ ہاں جو ہوا اس کی اصلاح کی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ میں آپ کو کیوں برا بھلا کہوں؟ آپ ہماری ماں ہیں، بہت اعلیٰ رتبہ اور مقام ہے آپ کا ہمارے نزدیک۔ آپ ریلیکس رہیں۔ اگر میں آپ سے ناراض ہوتا تو اس وقت آپ کے پاس نہ ہوتا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر ایک بات ضرور کہوں گا، اپنی ذات سے بڑھ کر کسی چیز پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کیسر خالہ نے آپ کو صرف استعمال کیا، انہوں نے آپ کو نہ کبھی خوش رہنے دیا اور نہ آپ کو اپنے حصار سے باہر نکلنے دیا۔ وہ مطلب پرست خاتون ہیں۔ اسجد سے تفصیلی بات ہو چکی ہے میری۔ اچھا ہوا خالہ کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب گزرے وقت پر پچھتانے کا کوئی ملال نہ کریں۔ ہاں اگر آپ اپنی غلطیوں کو اصلاح کرنا چاہتی ہیں تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی اولاد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور رہے گی بھی۔ سامان کا انداز بڑا سنجیدہ اور بردبار تھا۔ وہ اپنی کم فہمی اور نادانستگی میں کبھی انمول رشتوں اور جذبوں سے ساری عمر محروم رہی تھی۔ ان کے اندر کے احساس ذہن نے اور بھی شدت اختیار کی تھی۔ سارا دن ادھر سے ادھر خوار ہوتے۔ وہ آج کل سوائے نویرہ کی تلاش کے ہر کام بھول بیٹھا تھا۔ اس وقت بھی وہ انجم سے مل کر انتہائی مایوس واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس کی تلاش کا ہر حربہ استعمال کر لیا تھا، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جو دن گزر رہے تھے، واجدہ بیگم کے ساتھ ساتھ خالدہ بیگم کی طبیعت بھی بگڑ رہی تھی۔ نبیل الگ پریشان تھا اور وہ خود رضا سے سامنا کرنے کے بعد عجیب سے احساسات کا شکار رہنے لگا تھا۔ قصور اس کا تھا، بلکہ رضا کے بعد سب سے زیادہ قصوروار وہی تو تھا۔ 2 دن پہلے وہ بینک گیا تھا نویرہ کا اکاؤنٹ چیک کرنے، تو اسے شدید شوق لگا۔ 1 دن پہلے بینک سے تمام رقم نکلوائی گئی تھی اور وہ رقم نویرہ نے خود نکلوائی تھی۔ بینک میں جو رابطہ نمبر لکھوائے گئے تھے وہ سب خالدہ بیگم کے گھر کے اور نبیل کے نمبرز تھے۔ وہ باقاعدہ پلاننگ کر کے یہاں سے گئی تھی۔ وہ سڑکوں کی خاک چھان کر گھر جانے کا سوچ رہا تھا۔ بہت ٹریفک کی وجہ سے، رش کی وجہ سے دوسری طرف کی ٹریفک جوں کی توں رواں دواں تھی۔ شارق زمان الجھے ذہن و دل کے ساتھ اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجاتے رش کم ہونے کا انتظار کرتا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، جب اچانک نگاہ دوسری طرف رواں دواں ٹریفک پر پڑی تھی۔ بیکری شاپ کے سامنے کھڑی گاڑی میں 2 لڑکیاں تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود لڑکی نے اسکارف اوڑھ رکھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان وجود نے شارق زمان کی توجہ پوری طرح اپنی طرف مبذول کروا لی تھی۔ اس کا چہرہ اگرچہ چادر میں لپٹا ہوا تھا، مگر آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ واضح تھا۔ چادر کا ڈیزائن اور کلر۔ شارق زمان کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ نویرہ؟ شارق زمان ایک دم چونکا تھا۔ یہ ان کا گمان نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس کے ذہن کے پل میں شناسائی کی منزل پار ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ بچہ بھی تھا جو کہ نویرہ کے بازوؤں میں تھا۔ مذہب؟ شارق زمان نے بے قرار ہو کر گاڑی سے نکلنا چاہا تھا، مگر اس کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیوں نے ہارن دینا شروع کر دیا۔ ان دونوں نے بیکری سے شاید کچھ خریدا تھا۔ بیکری کے اندر سے لڑکے نے آ کر اس کو شاپر تھما کر رقم وصول کی تھی۔ شارق زمان فوراً گاڑی سے نکلا، مگر تب تک گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ گاڑی ریورس ہو کر رفتار پکڑ چکی تھی۔ شارق زمان نے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود لڑکی کو دیکھا۔ وہ ٹریفک میں پھنستا جب تک دوسری جانب پہنچا، وہ گاڑی تیز رفتاری سے نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ شارق زمان کو یقین ہو گیا تھا کہ گاڑی سے نکلتے ان لوگوں نے اسے ضرور دیکھ لیا تھا، تب ہی تو وہ لڑکی تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال لے گئی تھی۔ نویرہ؟ شارق زمان کا اشتعال اس قدر بڑھا کہ جی چاہ رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے۔ اتنے دنوں بعد وہ نظر بھی آئی تو کس عالم میں؟ اسے سب سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اتنی پریشانی میں وہ گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا بھول گیا۔ اگر نمبر نوٹ کر لیتا تو شاید اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی۔ وہ اپنی گاڑی بیچ سڑک میں چھوڑ کر نکلا تھا۔ دوسری طرف کا سارا ٹریفک رک گیا تھا، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کا غصہ۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اس نے چونک کر باہر دیکھا۔ آپ ذرا باہر آئیں، ٹریفک پولیس کا جوان اسے کہہ رہا تھا۔ اس کی غلطی کی وجہ سے سارا ٹریفک ڈسٹرب تھا۔ اس کا جی چاہا کہ باہر نکلنے سے انکار کرتے، مگر وہ انتہائی تحمل سے گاڑی ایک طرف پار کر کے اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔